Hello, good morning students. How are you all? I hope all are good. So students, our chapter bill of exchange was going on. Till question number 26 we have solved all the questions. I hope you have also noted all the questions on your copy. So if you have noted down on your notebook, then write in the comment section yes, your essay number also. With your essay number write yes, I have completed till question number 26. Okay. In this video we are going to study about question number 27 and 29. So open your books. If you are not having books, then with the help of video or you watch on the screen, you will get question as well as explanation of the same questions, right? Open your notebooks. So see, but our question is 27. Question 27. On 1st February 2017, Mohan sold goods 25,000. Okay. And Naresh drew upon him a bill payable after 90 days. On 1st February 2017, Mohan sold goods worth 25,000 to Naresh and bill was payable after 90 days. Okay. Naresh accepted the bill and Mohan endorsed the bill immediately in favor of his creditor Raja in full settlement of his account. 25,300 once week before the maturity of the bill, Naresh requested to Mohan to cancel the bill, right? And drawn upon him a new bill including interest of 400. Okay, so Mohan agreed to it. Mohan immediately took the bill from Raja by making the payment to him and the drew upon Naresh a new bill for 30 days, which was duly met by Naresh on the due date. So first of all, we have to prepare journal in the books of Mohan. Okay, prepare the format of journal, date, particular, ledger folio, debit amount and credit amount. Right, नोट कर लीजिए इतना. See, on February, Mohan sold goods to Naresh. Okay, so Naresh डेबिट हो जाएगा बेटा टू सेल्स अकाउंट. 25,000 था, 25,000 आप लिख दीजिए. आफ्टर दैट ऑन February 1 बिल क्रिएट हो गया ना, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट आ जाएगा बेटा 25,000. नेक्स्ट क्या होगा, ऑन February 1 को ही राजा डेबिट हो गया 25,300 रुपये से. क्यों हुआ? क्योंकि 25,000 का बिल था, 3,000 रुपये, सॉरी 300 वॉज द डिस्काउंट, राइट. सो टोटल मनी ड्यू हो गया 25,300. नाउ ऑन April 27 नरेश डेबिट टू राजा 25,000 बेटा. ओके, बिल रिसीव्ड कैंसल्ड. ओके, ऑन 27 April राजा डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 बेटा. ये आ जाएगा. क्यों? क्योंकि 25,000 रुपये राजा ने कैश पेमेंट कर दिया. ओके, आफ्टर दैट ऑन 27 फिर से कैश पेमेंट हो गया. नेक्स्ट सी, दिस बिल वॉज included an interest of 400. Okay, on 27 April. So Naresh will be debited to interest 400. Okay, now Naresh accepted a new bill with the interest also. So interest was 400. So 25,000 का बेटा बिल है देखिए, और 400 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 25,400. राइट. अब कब हुआ था? 27 अप्रैल को. कितने मंथ के लिए हुआ है? 1 मंथ के लिए. तो अप्रैल से लेकर के 1 मंथ कब हो जाएगा? मई में 27 में. एंड ऐड 3 डेज ग्रेस पीरियड 28, 29 एंड 30 मई को आपका बिल रिसीव हो जाएगा. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 25,400 रुपये आपका इसमें
आ जाएगा। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन देखिए फिर से क्या हुआ था कि मोहन ने गुड्स बेचे नरेश को, नरेश ने उसके ऊपर बिल बना दिया 90 डेज़ के लिए। आफ्टर दैट क्या होता है, बिल इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है राजा को, ठीक है, 25,300 में। तो सारी एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको सारी एंट्री समझ में भी आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29। सो ओपन क्वेश्चन नंबर 29। सी बेटे, क्वेश्चन 29 क्या है? विमल परचेस गुड्स 25,000 फ्रॉम कमल ऑन January 15, 2017, okay, and accepted a bill of exchange drawn upon him by Kamal payable after 2 months, okay. On the date of maturity the bill was duly presented for payment। जो भी ड्यू डेट आई उस मैच्योरिटी पे पेमेंट कर दिया गया। नाउ विमल डिसऑनर्ड द बिल, विमल ने क्या करा बेटा, बिल को डिसऑनर कर दिया। बोल रहा है क्वेश्चन, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन द बिल वाज रिटेन्ड बाय कमल ऑन इट्स मैच्योरिटी। कि मैच्योरिटी पे बिल जो है वो कमल के द्वारा रिटेन हो गया, आप उसकी जर्नल पास करिए। सेकेंड, द बिल वाज इमीडिएटली डिस्काउंटेड बाय कमल विद इज बैंक 6% पर एनम। उसके बाद में क्या होता है, द बिल वॉज इंडोर्स बाय कमल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर शरद, ओके। फिर क्या होता है, 5 days बिफोर इट्स मैच्योरिटी द बिल वॉज सेंट बाई बैंक टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। तो फिर कलेक्शन के लिए भेज दिया गया। फिर से देखिए, विमल ने 25,000 के गुड्स खरीदे कमल से जनवरी 15, 2017 पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ कमल के द्वारा। 2 months के बाद पे किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कमल ना। विमल सोल्ड गुड्स, सॉरी कमल सोल्ड गुड्स ना, सो विमल विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ कमल टू सेल्स अकाउंट। आप फॉर्मेट बना लीजिए, पहले एंट्री पास कर लीजिए। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द बेटा नेक्स्ट एंट्री, बिल क्रिएट होगा जनवरी 15 पे, तो बिल रिसीव टू विमल, विमल एक्सेप्टेड द बिल 25,000 इसमें आ जाएगा। नाउ कम टू द केस वन। केस वन वाज बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी। सो ऑन March 18 विमल डेबिट हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल 25,000 इधर हो जाएगा, ओके। सेकंड कह रहा था कि बिल रिटेन हुआ इमीडिएटली बट इट वाज ऑन 6% डिस्काउंट विद द बैंक। सो ऑन January 15 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल वाज ऑफ 25,000 बट देर वाज ए डिस्काउंट ऑफ 6% ना, तो 6% कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 6/100 इंटू कितने मंथ का लगेगा बेटा इसमें, मार्च में था, जनवरी में था, 3 months के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3/12 6 12 2 आ जाएगा, 2 0 ये काट देंगे, 12 सॉरी फॉर 2 months बेटा, ओके। सो 250, हाउ 2 months बेटे, ये आ जाएगा आपको 2 से मल्टीप्लाई होकर के 250। बेटा देखिए, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 2 month पूरे हो जाएंगे, 15 जनवरी से 15 फरवरी, राइट। सो दिस वे दिस एंट्री विल बी पास्ड। नाउ बिल विल बी पेड डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आई तो बिल क्या हो गया बेटा, इट वॉज डिसऑनर्ड। अरे ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, डिसऑनर हो गया भाई फिर से। तो 18 मार्च पे फिर से विमल डेबिट हो गए और बैंक क्रेडिट हो गई 25,000 पे, ओके। नाउ बिल इंडोर्स इन फेवर ऑफ शरद। अब थर्ड केस ये कहती है कि सेम जो बिल था बेटा, फिर से पढ़िए कि दैट वाज इंडोर्स इन फेवर ऑफ शरद। तो ऑन January 15 शरद विल बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 25,000 आपका आ जाएगा, ओके। उसके बाद March 18 विमल डेबिट टू शरद, फिर से बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो विमल डेबिट हो जाएंगे टू शरद, मतलब बिल को इंडोर्स कर दिया गया, ड्यू डेट पे बिल को इंडोर्स कर दिया गया।
तो एंडोर्समेंट की एंट्री पास होगी। नाउ नेक्स्ट केस इज सेइंग कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो बेटा मार्च 13 को बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बी आर क्रेडिट हो गया, एंड ऑन ड्यू डेट विमल डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 25,000 बेटे इसमें आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर टिल हेयर? एनी डाउट इज देयर? इफ एनीबडी इज फेसिंग डाउट तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। एंड बेटा नाउ इफ वी प्रिपेयर इन द विमल अकाउंट ना, तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू क्या हो जाएगा आपका, कमल हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, कमल, एंड देन आफ्टर दैट कमल डेबिट टू बीपी हो जाएगा, फिर बीपी डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, जो भी डेट होगी उस पर पेमेंट हो जाएगी। राइट, समझ में आई ये बात? उसके बाद में सेकंड केस में अगर इंडोर्स हो रहा है, सो अगेन शरद विल बी डेबिट हो जाएगा आपका टू बीपी, इंडोर्समेंट की एंट्री पास हो जाएगी। So I hope you have got it all the things whatever we are discussing here, and I hope you will note down all these questions. Okay, so आप लोगों को you have to note down all these questions whatever discussed in the video on your notebook. Okay, and send in the group. Thank you students for watching this video. Bye bye, take care.